Hello students, today I am going to explain you Unit 3 Animal Facts and Fantasy Section A Penguin Floric. As you know, the animals is also enjoying their life. They also make a fun like us, and in this chapter this thing tells us how the animals enjoying their life and how they have fun. So now come to the lesson. Penguin Floric. Mirror, mirror on the wall, who is cleverest of them all? Them all in this case are animals. The main contenders of the title are voice owl, the elephant, all dogs and crows, the fox and ants, and the list keep growing. Little Kabir go terribly confused and ran to his father for the answer. Other children followed. You know it was the elephant in the Bangkok that ran to the mountain with the tourist girl on his back and saved her from the dreadful tsunami. All those who followed the elephant were saved too. Was Aradhna's contribution. One day, some children get gathered and they talk about the cleverness of the animals and birds. They all one of them says that voices all was very voices owl is very voice. The elephant and dogs and crows and fox and ants among them. Then little Kabir. There was a boy whose name is Kabir. He was so much confused, and he ran to his father and asked her. Then all the children followed him. Then his father told them that how to an elephant in Bangkok save a little tourist girl when the tsunami came. All the people who followed the elephant they also saved their life. They ran to the mountain and they saved their lives. Now, in this chapter, writer explains how the penguins enjoy their life who lives in Atlantic, and the title of the lesson is Penguin Floric. It means how the penguin enjoy. Floric means कैसे penguins मस्ती करते हैं और कैसे वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसमें रहते हैं, एटमॉस्फेयर में, बहुत ही कोल्ड एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे भी वो कैसे अपनी लीव्स को, अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे वो मस्ती करते हैं. इस चैप्टर में यही चीज़ बताई गई है. ओके, नाउ कम टू द लेसन. दिस इज एन अकाउंट ऑफ द पेंगुइन which lives in Atlantic, observed by one of the traveler to the remote ice-bound land. With the approach of summer, the sea ice broke away in patches, leaving open water along the shore of the rookery. This is a you can say this is the experience that shared by a traveler who went to the Atlantic, and
there what he saw, that is explained by this in this chapter. This is an account of, ये एक अकाउंट मतलब एक कलेक्शन है एक ट्रैवलर का जो कि अटलांटिक में गया रहता है वहाँ पर, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस माना जाता है, और वो वहाँ पे ऑब्जर्व करता है कि पेंगुइन्स, जो वहाँ पेंगुइन्स रहते हैं, उनकी लाइफ को वो कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वो वहाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं. विद द अप्रोच ऑफ समर, मतलब समर पहुँच चुकी रहती है, एंड द सी आइस ब्रोकन अवे इन पैचेस, और जो समुद्र की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो वहाँ पे समुद्र भी जो होता है वो भी पूरा जम गया रहता है, पानी उसका जमा रहता है. तो क्या होता है कि वो समर जब गर्मियाँ आती हैं तो वो भी पैचेस जो हैं, पैचेस हो जाते हैं, उनके मतलब टुकड़े होते हैं, वो गलती है थोड़ी सी. लिविंग ओपन वाटर एमंग द शोर ऑफ द रुकरी, और रुकरी मीन्स कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स. ओके, लिविंग ओपन वाटर एमंग द शोर ऑफ द, शोर मीन्स समुद्र के किनारे को कहते हैं जहाँ पर पेंगुइन्स रहते हैं, उनकी पूरा उनका ग्रुप रहता है. लार्ज companions of the penguin now went down to the bath and swim under the surface, catching the little shrimps which swam there. These were their food. The writer told in this chapter that how they enjoy their life when the ice is melted and the shore of the sea is become a water. क्या होता है कि वो जब गर्मियाँ आती हैं तो वो समुद्र जो है वो गलता है, और जो जम गया रहता है बर्फ, आइस जो होती है वो गलती है, और उसमें क्या होता है कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो बहुत सारे अपने साथियों के साथ में जाते हैं क्या करने के लिए, नहाने के लिए, स्विम और तैरने के लिए अंडर द सरफेस. सरफेस मीन्स सतह, मतलब आइस की जो सतह जम गई थी वो जगह जगह से पैचेस में वहाँ पे पानी दिखाई देने लगता है. They catching the little shrimps. Shrimps means shrimps is a creature that creature of sea, just like you can say jhinga. Okay, there was a lot of shrimps in the under the water, and that are the food of that penguins. वहाँ पर वो लोग इकट्ठा होते हैं और स्विम मतलब तैरने के लिए जाते हैं, और कैचिंग मीन्स पकड़ने के लिए. क्या श्रिम्प्स कहते हैं झींगे को, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो उनको ही खाते हैं, ये उनका खाना होता है. द आइस फूड वॉज एवर 5 feet above the water, so they had to dive in. I soon noticed that never dived in alone, but waited patiently until a little crowd was gathered. Then the traveler said that there he observed that the ice is about to 5 feet and under the surface, and they when they saw that the penguins is not swimming alone, they gathered like a crowd, not one or two, they gathered in a crowd and then they go to swim, they went to swim. This ice food, जो ट्रैवलर है उसने देखा था कि वहाँ पर क्या था, जो आइस फोर्ट वहाँ पे जो थी बर्फ़ जो थी वो करीब 5 फीट एबव वाटर, मतलब पानी 5 फीट ऊपर तक, पानी के 5 फीट ऊपर तक बर्फ़ जमी हुई थी. सो दे हैड टू डाइव इन. तो वो क्या कर रहे थे पेंगुइन, उसमें इतना अंदर पानी होता है कि उसके इतने अंदर पानी उनको दिखाई पड़ता है कि उसमें वो
छलांग लगाते, डाइव इन मीन्स छलांग लगाना। सून दे नोटिस, जल्दी वो नोटिस करता है, दे डाइव इन, वो अकेले नहीं जाते, मतलब वो उस पानी में या उस आइस उसमें अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि वो क्या जाते हैं, इंतज़ार करते हैं धैर्य के साथ जब तक उनका पूरा ग्रुप, उनका पूरा समूह नहीं आ जाता है, जब एक भीड़ से इकट्ठा नहीं हो जाती उन सब की, तब तक वो नहीं जाते हैं। दिस वॉज बिकॉज, ये क्यों होता है, दिस वॉज बिकॉज अ फेरीज काइंड ऑफ सील called sea leopard often had hid in the water under the overhanging edge of the ice, waiting to catch the penguins when they dive in. Then why they waited? Because देयर वॉज, वहाँ पर क्यों वो रुके रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है। किसका डर रहता है, फेरिस काइंड ऑफ, मतलब डर रहे होते हैं किससे, वहाँ पे सील, शील अ काइंड ऑफ, यू नो, सील एक मछली होती है जिसको दे कॉल्ड हिम सी लेपर्ड, बेटर वे वी कैन से सी लेपर्ड को हम सी लेपर्ड भी कह सकते हैं। वो उस आइस में जो आइस जमी हुई रहती है उसमें जो एजेस होते हैं उसके किनारों पर, मतलब जो हैंगिंग में वे में, जैसे आप कह सकते हैं आइस जमी हो और जम के वो पतली सी कोने से बन जाती है, तो उसी में नीचे वो उसी में पकड़ के वो लटकी रहती है और वेट कर रही होती है। और जैसे ही उसको वहाँ पर कोई भी पेंगुइन अंदर कूदते हुए दिखाई देता है तो वो उस पर अटैक कर लेती है, क्योंकि वो उनका पेंगुइन्स को वो खाती है। सो वो अकेले नहीं ड्राइव करते बल्कि वेट करते हैं सबका कि वो सभी आ जाएं तब हम उसमें जाएं।